Good evening, friends, and you are watching YouTube channel Grammar Guru. Friends, today's topic is very important. This is verb and its type. This is very important chapter because we know verb is very important in a sentence. If we don't know actually what the verb are and what type of verbs are and how they are used in a sentence, we commit up plenty of mistakes. So we will know what is verb and all detail about it. So watch the video till end. What is actually verb is? Verb is a word which denotes in a sentence what is happening. This is important. verb किसी वाक्य में किसी कार्य के होने को दर्शाती है. Yes, in next sentence you will know verb shows what action is done by the subject. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है यह बताने वाला शब्द वर्ब कहलाता है. Other definition of the verb is an action word in a sentence. What actually this denotes? This denotes what action is being done. So we can say this is an action word. Verb क्या है? Verb एक action word है. Now we will discuss types of verbs. Yes, types of verbs. How many types of verb are? Friends, I have made a diagram and you will know what actually how many types of verb are and what is verb. So verb are generally classified into two. Yes, verb को मैंने टू टाइप से क्लासिफाइड किया है. आइए देखते हैं किस प्रकार से. सबसे पहले हम जानते हैं वर्ब को क्लासिफाइड करेंगे. नंबर वन ऑक्सिलरी वर्ब. सेकंड वन इज मेन वर्ब. Main verb is also called lexical verbs. The new name is this is lexical verb. Again, this auxiliary verb may be divided into two. Number one is primary auxiliary verb. Second one is modal auxiliary verb. In the same manner, this lexical verb is also divided into two: finite verb and non-finite verb. Yes. So let us discuss one by one. Very first we will know what actually primary auxiliary verb and what actually modal auxiliary verb. So these are the modal auxiliary verbs and these are primary auxiliary verbs. We will discuss one by one. In primary auxiliary verb they are do. Yes, do in detail: do, does and did. Yes, do, does and did. And other one is have, and in detail have, has, have, had. And third one is be, and be means be form is, are, am, was, were. So these are the primary auxiliary verbs. If I talk about modal auxiliary verbs, let us know. This is modal auxiliary verbs. Yes, these are modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs are number one can, could, may, might, should, must, ought to, would, need, dare. So these all are modal auxiliary verbs. We will discuss one by one all about these verbs: primary auxiliary verb, modal auxiliary verb. Then we will discuss about lexical verbs, main verbs. They were divided into two. One is finite verb, other one is non-finite verb. Finite verb would also be divided into two, that is transitive verb
and other one is intransitive verb, and then we will discuss about non-finite verbs. Non-finite verbs. So we will discuss one by one. Let us know. Very first, I will talk about primary auxiliary verb do, and the full form of do is do, does, and did. Do and does, they are used in present indefinite tense to make negative sentence and interrogative as well. And did is also used in past indefinite tense to make negative as well as interrogative sentence. Yes, to make present indefinite tense and past indefinite tense, as I have told right now, in present indefinite tense में do या does को interrogative sentence बनाने में और negative sentence बनाने में यूज करते हैं। ठीक इसी प्रकार से did का past tense में यूज करते हैं। For example, she doesn't do her work. She doesn't do her work. Important point is does not. So you need to know this is negative sentence, present indefinite का negative sentence है तो does not का यूज किया है। Other one sentence, this is do they go to Nainital. This is present indefinite का interrogative sentence है। इस प्रकार से हमने जाना कि do, does, did का प्रयोग हम indefinite sentence, present indefinite, past indefinite के negative और interrogative sentence में यूज करते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ और यूजेस क्या हैं। Other use of do and does and did, they are to make emphatic sentence of indefinite tenses. Indefinite sentence की emphatic sentence बनाने के लिए भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। What actually emphatic? किसी बात को जोर देकर के कहते हैं, that is called emphatic use of do and does. Sarla does sing a song. Generally, I talked about do and does and did generally used to make negative and interrogative, but you can see here this is neither negative nor interrogative one. But Sarla does sing a song. सरला गाना तो गाती है। यहाँ हम देखेंगे तो शब्द, यानी ये पूरा शब्द जो है पूरे सेंटेंस को एम्फेसाइज करता है। तो ऐसी स्थिति में भी हम डू डज का प्रयोग वाक्य को एम्फेटिक बनाने में कर सकते हैं। डू इज यूज टू मेक नेगेटिव इम्परेटिव। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। डू इज यूज टू मेक नेगेटिव इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। एंड सेंटेंस एंड इम्फेटिक इम्परेटिव और इम्फेटिक इम्परेटिव बनाने के लिए भी इसका हम प्रयोग करते हैं। आइए एक एग्जांपल से जानते हैं। डू नॉट कॉपी अदर्स। यस, डू नॉट कॉपी अदर्स, दिस इज अ नेगेटिव वन। यस, इम्परेटिव का नेगेटिव है। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस इज डू राइट इट अगेन एंड अगेन, इसको बार बार तो लिखो ही, इसका मतलब हुआ तो इम्फेटिक सेंटेंस हो गया, इम्परेटिव का इम्फेटिक हो गया। अतः हमने डू से इम्फेटिक इम्परेटिव और नेगेटिव इम्परेटिव बनाने में हमने सेंटेंस को समझा। अगली जो वर्ब है दैट इज हैव, हैज एंड हैड। द फॉर्म्स ऑफ हैव, ये हैव के ही फॉर्म है। हैव, यस, हैव, हैज, हैड। These helping verb are used to make perfect tense and present, past and future. Yes, this is very important. These helping verbs are used to make perfect sentence of past, present and future. Present, past और future की present perfect tense यानी perfect tense बनाने के लिए has, have, had का प्रयोग हम करते हैं। For example, students will have written a letter. दिस इज फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस। आइए जानते हो दूसरी कुछ वर्ब्स के बारे में। नेक्स्ट यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज बी। फुल फॉर्म बी इज, आर, एम, बाज, बर और बी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तीन प्रकार की होती है, जैसा मैंने अभी बताया, डू, हैव और बी। बी का फुल फॉर्म होता है इज, आर, एम, बाज, बर और बी। इनका यूज कब और कैसे करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए पैसिव वॉइस बनाते हैं किसका? इंडेफिनिट का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का या पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने में भी इनका हम यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं? सिंपल इंडेफिनिट टेंस बनाने में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। किसका? बी का। तीन प्रयोग हमने जाने, एक तो कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, या पैसिव वॉइस बनाएंगे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट,
या फिर सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी इसके यूज करके बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहित इज सिंगिंग ए सॉन्ग। आई थिंक एवरीबडी नोज दिस सेंटेंस। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, he is a good player. Yes, this sentence is simple indefinite tense, इन प्रेजेंट का सिंपल इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट देखें, a letter is written by a boy. This is passive voice. Yes, this is passive voice. In this way we come to know that be is rm bajbar is used to make continuous tense. Number 2, indefinite का passive voice, and number 3 to make simple indefinite tense. So इस प्रकार से हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के तीनों फॉर्म को समझ लिया है, डू, हैव और बी को। आइए जानते हैं हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर एज फॉलोज। इनके बारे में पहले जानते हैं, जैसे कि कैन, could, may, might, should, would, ought to, dare, need, used to. Yes, dare, need and used to, they are marginal modal auxiliary verbs. Dare, need, used to, they are generally categorized इन मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो अभी हमने जाना कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, ये सब कौन सी वर्ब होती है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन डेयर, नीड, यूज टू, ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, लेकिन उनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। Actually, we should know how to use them to make sentence correct. Number 1, first form of the verb is followed the modal auxiliary verb. This is very key point. Modal auxiliary verb के बाद हमेशा verb की first form ही आती है। Modal auxiliary verb followed the verb are not affected by number, gender of the noun. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो वर्ब आएगी वो नाउन के वचन और नाउन के जेंडर से प्रभावित नहीं होती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आने वाली क्रिया संज्ञा के वचन व लिंग से प्रभावित नहीं होती है। आइए कुछ और तथ्यों को जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन रीड इंग्लिश वेरी वेल। ये हम देखेंगे कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद रीड वर्ब उससे पहले आए हुए दे से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। जब दे प्लूरल है, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, मॉडल के बाद वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सी है, सी कैन रीड इंग्लिश वेरी वेल। सी सिंगुलर है लेकिन मॉडल वर्ब कैन है, उसके बाद भी रीड है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दिस इज वेरी की पॉइंट्स। सो लेट अस डिस्कस अबाउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन। कैन का प्रयोग कैसे करते हैं और क्या होता है इसका मतलब। कैन का हिंदी में अर्थ है सकना या सकता। ठीक है, क्या क्या काम करता है? नंबर 1, टू शो पावर, एबिलिटी, कॉम्पिटेंसी यानी शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य बताने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। यस, कैन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? शक्ति, सामर्थ्य या क्षमता यानी टू शो पावर, एबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी। लेट अस नो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम इन द रिवर। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं या आई कैन स्विम इन द रिवर यानी मैं नदी में तैर सकता हूँ, मेरी ये सामर्थ्य है। नेक्स्ट, यू कैन डिफीट योर अपोनेंट्स। तुम अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकते हो, ये भी मेरी एक सामर्थ्य है, मेरी एक शक्ति है। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस मॉडल ऑक्सिलरी
कैन का मतलब बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ और नो हाउ टू। कैन का मतलब होता है कि किसी कार्य को करने में सामर्थ्यवान होना, उसके लायक क्षमता होना या उस कार्य को अच्छे से जानना। सो लेट अस नो बाय सम एग्जांपल। ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, या वो अंग्रेजी बोलने में सक्षम है, या ही कैन स्पीक इंग्लिश। हम दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कैन इज यूज टू गिव परमिशन। कैन का प्रयोग अनुमति देने के लिए किया जाता है। जैसे यू कैन टेक माई पेन, यह हमने कहा तुम मेरा पेन ले सकते हो, मैंने इसको अनुमति दे दी। सेकेंड पॉइंट, thus can is used to show to be allowed to be permitted to। इस प्रकार से हम समझे कैन का प्रयोग अनुमति देने के लिए किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अलाउड टू टेक माई पेन, यह हमने उसको अनुमति दे दी। इस प्रकार से यू आर अलाउड टू टेक माई पेन। Can is also used to show theoretical possibility। सैद्धांतिक संभावना बताने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सैद्धांतिक संभावना कैसे? मैन कैन मेक मिस्टेक, मनुष्य से भी गलती हो सकती है, ये सैद्धांतिक संभावना है। कैन के कुछ और प्रयोग भी जानते हैं। कैन इज यूज टू प्रोहिबिट, प्रतिषेध करने के लिए, निषेध करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से कैन के हमने बहुत सारे प्रयोग समझे और भी कुछ मॉडल्स के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट मॉडल इज कुड, यूज ऑफ कुड। कुड का प्रयोग कैसे करेंगे? हिंदी में इसका मतलब है सकना या सकता। ठीक है, सकना या सकता कुड का मतलब होता है। Number 1, this is past form of can। The important fact is this is the past form of can. Therefore, could is used for can in the past tense। could का प्रयोग can के स्थान पर past tense में करते हैं। बिल्कुल ठीक। यदि आप can का प्रयोग ठीक से समझ गए हैं तो could का प्रयोग करना भी बहुत सरल है। बस अंतर सिर्फ इतना है, can को प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और could को past tense में यूज करते हैं। For example, Mohan could speak English when he was a young boy। मोहन जब एक छोटा बालक था तब वो अंग्रेजी बोल सकता था। इसका मतलब हुआ was या वर प्लस एबल टू मैनेज टू सक्सीड इन, अर्थात कैन का मतलब हुआ संभावना होना, संभालना, सफल होना। इस सेंस में भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। He could pass the board examination, यानी यहाँ उसकी सक्सेस होना बताया गया है, तो could को हम कैन की जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज could is used to express polite request और permission इन फॉर्म ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, could का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट प्रेजेंट करने के लिए यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट, लेकिन फॉर्म क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या कृपया मेरी मदद करेंगे? यहाँ हम देखेंगे दिस इज पोलाइट रिक्वेस्ट। सो इस प्रकार से हम कैन और कुड के यूज को अच्छे से अगले मॉडल के बारे में चर्चा करते हैं। दिस इज यूज ऑफ मे। हिंदी में इसका अर्थ होता है सकता या सकना। आइए जानते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। यूज ऑफ मे, टू आस्क फॉर परमिशन। द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज, इसका प्रयोग हम अनुमति मांगने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई टेक योर नोटबुक, क्या मैं आपकी नोटबुक ले सकता हूँ? यहाँ भी क्या है? अनुमति मांगी जा रही है। दूसरा इसका यूज क्या है?
टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना प्रकट करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट मे रेन टुडे, ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज वर्षा हो सकती है। इस प्रकार से हमने कैन, मे का प्रयोग सीखा। आइए चर्चा करते हैं कुछ और मॉडल्स के बारे में भी। दिस इज इम्पोर्टेंट मॉडल दैट इज कॉल्ड माइट। माइट का प्रयोग हिंदी में देखते हैं सकता या सकना, इसका प्रयोग होता है। इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ मे। यस, व्हाट इज माइट? माइट इज पास्ट फॉर्म मे। मे का ही ये पास्ट फॉर्म है। सो यूज्ड फॉर मे इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में मे की जगह पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज क्लाउडी नाइट सो इट माइट रेन देन। बादलों वाली रात थी तो बारिश हो सकती थी। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया है। आइए जानते हैं माइट के कुछ और भी प्रयोग। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। यस, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइट आई टेक यू बाइसिकल, क्या मैं आपकी साइकिल ले सकता हूँ। इस प्रकार से मे के प्रयोग जब हम करते हैं, माइट का प्रयोग भी पास्ट टेंस में हम उसी प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज शुड। शुड का प्रयोग कैसे करते हैं? टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक कर्तव्यों को प्रकट करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी शुड ओबे द एल्डर्स, हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। यू शुड हेल्प द नीडी, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस प्रकार का नैतिक जो दायित्व बताया जाता है तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मॉडल है मस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी शुड नो व्हाट एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट। सो वी शुड नो यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का प्रयोग क्या क्या होते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, दृढ़ कर्तव्य परायणता, दृढ़ कर्तव्यों को बताने के लिए। शुड और मस्ट में इतना ही अंतर है। शुड सामान्य यूज है, तो मस्ट उसका एक एम्फेसाइज यूज है, किसी चीज को जोर दे करके कहना। फॉर एग्जाम्पल वी मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, सफल होने के लिए हमको कठिन परिश्रम करना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, दृढ़ संभावना प्रकट करने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल ही लुक्स सैड, ही मस्ट बी इन ट्रबल। इस सेंटेंस में हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, अतः मस्ट का प्रयोग हम मोरल वैल्यूज, मोरल ऑब्लिगेशन के साथ साथ इसको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के रूप में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट मॉडल दैट इज यूज ऑफ ऑट टू। हिंदी में इज चाहिए, हिंदी में इसका मतलब भी चाहिए होता है, जैसा कि शुड, मस्ट और ऑट टू। अब तीनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जो मस्ट का यूज है वही ऑट टू का यूज है। दिस इज यूज लाइक मस्ट, जहाँ मस्ट का यूज कर सकते हैं वहीं पर हम ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं। नंबर 1, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, एज वी टॉक अबाउट मस्ट, you ought to follow the rules on the road. This is use of ought to. Yes. Next example is we ought not to disrespect elders. हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। This is the right use of ought to. Next model is that is use of would.
What is would? Actually, would is past form of will. So to express past habits, इसका प्रयोग पुरानी आदतों को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लर्न एवरीथिंग इन चाइल्डहुड. बचपन में मैं सब याद कर लेता था. नेक्स्ट वन इज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट. विनम्र निवेदन प्रकट करने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज हेल्प मी. Would you please help me? So in the manner of interrogative sentence, would is used to express polite request. Next model auxiliary verb, that is use of dare. In Hindi meaning हिम्मत करना. This is very important and this is very interesting one because dare, need and used to be called marginal model auxiliary verb. This is used both helping verb and main verb as well. So this is very important. इसका प्रयोग main verb और helping verb के रूप में कर सकते हैं. After this model auxiliary verb dare, to infinite to, yes, this infinite to is not used in the when used is as helping verb. जब इसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं तब इसके बाद टू इन्फिनिट का प्रयोग नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट टू टॉक टू मी. इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज किया है, अतः इसके बाद डेयर नॉट टू, यहाँ टू नहीं लगाया. यस, यह हमने टू का प्रयोग नहीं किया. नेक्स्ट, ही डेयर्स टू टॉक टू मी. यू कैन सी दिस इज टू आफ्टर डेयर्स, बट डेयर इज यूज्ड एज मेन वर्ब. So this auxiliary verb may be used both the way. The one is as helping verb, other one is main verb. The same manner, the other model auxiliary verb, that is need. In Hindi meaning जरूरत है. इसको भी हम marginal auxiliary verb कहते हैं और इसका प्रयोग भी dare की तरह ही करेंगे. आइए जानते कुछ एग्जाम्पल से. I need not your help. इसका प्रयोग हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई नीड योर हेल्प. यह हमने देखा नीड का प्रयोग हमने मेन वर्ब के रूप में किया है. यस, दिस इज लाइक मेन वर्ब. अगेन द सेम थिंग, टू इन्फिनिट इज नॉट यूज्ड आफ्टर इट when it is used as helping verb. जब इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब में करेंगे तब इसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज यूज ऑफ यूज्ड टू. इन हिंदी मीनिंग किया करता था. इसका प्रयोग कब करेंगे देखते हैं. टू एक्सप्रेस ओल्ड हैबिट्स या पास्ट हैबिट्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज ए यंग बॉय I used to make a mischief. Yes, जब मैं एक छोटा बालक था तब मैं गलतियां किया करता था. तो दिस इज ओल्ड हैबिट. इस प्रकार से हमने ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिटेल से चर्चा की. कुछ एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश की. इसके बाद हम देखते हैं मेन वर्ब को. दिस इज द मेन वर्ब. Main verb again may be classified into two groups. The first group is that is called finite verb, यानी मुख्य क्रिया, and this finite verb may be divided into two. Again, the word is transitive verb, सकर्मक क्रिया. What actually transitive verbs? Transitive verbs are those they need ऑब्जेक्ट. जिन क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उनको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम रोट ए लेटर.
यहाँ यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ लेटर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। बट ऑन अदर हैंड वी टॉक अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब्स, अकर्मक क्रियाएं। इट मीन्स दोज वर्ब्स नीड नॉट एनी ऑब्जेक्ट, वे क्रियाएं जिनके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उनको इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। सो इम्पोर्टेंट फैक्ट इज दैट द वर्ब लाइक, स्माइल, फील, appear, smell, seem, etc. are intransitive verbs. Like Rohit smiles. Here you can see no need of any object. Yes. So the next term for the main verb is, that is non-finite verbs. Non-finite verbs are these verbs are in the form of the verb but they don't act as a verb. This is a very important fact. Though we call them verbs, actually they do not act an action like the verb. Non-finite verb का रूप है लेकिन वास्तव में verb नहीं है. Then non-finite verbs are used like noun, pronoun. So they are in the form gerund, infinite, and the participle that is used for adjectives. Non-finite तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि gerund, infinite और participle. gerund और infinite का प्रयोग हम noun और pronoun के रूप में करते हैं, लेकिन participle का प्रयोग adjective के रूप में करते हैं. इस प्रकार से मैंने non-finite verb के बारे में बताया. non-finite verb पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, सो मैं चाहूँगा कि आप नॉन फाइनाइट पर बने हुए उस वीडियो को भी देखें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर वर्किंग हार्ड ही कुड लर्न हिज लेसन. यस, सो दिस इज gerund. So friends, I discussed the complete video about the verbs. All part of verb I have discussed very well. Like again I would say, the verb is defined in two parts, that is auxiliary verb, other one is main verb. Auxiliary verb may be categorized again two parts, that is primary auxiliary verb, modal auxiliary verb, and main verb is divided into finite verb and non-finite verb. Finite verb, transitive and intransitive again, and finally non-finite verb. So in non-finite verbs I am not going to discuss in this video because video would be larger, and I have made a separate video about this non-finite. They are gerund, infinite and participle. This is very important video, so I would suggest you to watch this video first, and link of this video would be linked in description box. I think you find this video very informative, very useful for you, because this is useful for all the aspirant of PGT and TGT, as well as for those who are preparing for any of the board examinations. So if you find this useful and informative, then share and subscribe the video, and let me know your views or keep comment. Stay motivated. Thank you for watching.